Good evening, everyone. Welcome back to the weekly webinar cum training session of Rajlakshmi Solutions Private Limited. On behalf of Rajlakshmi team, I would like to welcome all the attendees here. I am Managa representing Rajlakshmi Solutions Private Limited. So today we are going to talk about purchase management in Tally Prime. Before moving ahead to today's topic, let's take a small introduction of Rajlakshmi Solutions Private Limited. So we are into the multiple segments, that is sales, services, solutions, implementations and development. We are also into the multiple softwares, that is Tally Prime, SAP V1, Bittrex 24 CRM and Skill India. So now moving ahead to the today's topic. So now the speakers are here. The presentation will be conducted by Miss Ankita. So Ankita, are you here? Yes, ma'am. Okay. And the live demonstration will be done by Mr. Aniket. So Aniket, are you here? Yes, ma'am. Okay. And the resource person, Mr. Bhagwati Dhandaria. Sir, are you here? Yeah, I am available. Thank you. Hearty welcome all of you. So I request Ankita and Aniket to move ahead with your presentation. Thank you. Screen is visible to all? Yeah, it's visible, but please check the slide in the first number, please. Yeah. Yes, ma'am. So, hello, good evening, everyone. Myself, Ankita, representing on behalf of Rajlakshmi Solutions Private Limited, on behalf of the management and all the team of Rajlakshmi Solutions. I would like to welcome all the participants and moving ahead to present our topic. So, our today's topic is purchase management in Tally Prime. So first we will discuss introduction. Purchasing management is a department in an organization responsible for purchasing activities. Purchase is the most important function in any organization. Purchase is the first element that affects the product cost. Purchase management decides the profitability of the company. The purchasing management department ensures that all goods, supplies, and inventory needed to operate the business are ordered and kept in stock. It is also responsible for controlling the cost of the goods ordered, controlling inventory levels, and building strong relationships with suppliers. So basically purchase management एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो हर ऑर्गेनाइजेशन में पर्चेसिंग एक्टिविटीज संभालता है. हर एक ऑर्गेनाइजेशन में परचेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है. परचेस एक ऐसा एलिमेंट है जो प्रोडक्ट के कॉस्ट पर इफेक्ट करता है. जो भी प्रॉफिटेबिलिटी होती है उस पर परचेस मैनेजमेंट ध्यान देती है. परचेस मैनेजमेंट ये ध्यान में रखती है कि जो भी गुड्स सप्लाई करने हैं वो विद इन स्टॉक में रहने चाहिए. ऑल्सो परचेस मैनेजमेंट रिलेशन बिल्डिंग, कंट्रोलिंग इन्वेंटरी, गुड्स ऑर्डर्ड, इसके ऊपर भी काम करती है. सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, importance of purchasing. Purchasing is an important function in all types of business organizations, whether it is small, medium, or large. Without purchasing, no business can be operated. In today's world, purchasing plays a significant role in shaping business decisions. The role of purchasing in business management has become a very important. So, purchase important हर एक बिजनेस में है, जैसे कि लार्ज स्केल, स्मॉल और मीडियम स्केल. परचेस के बिना कोई भी बिजनेस ऑपरेट नहीं हो सकता. अभी के टाइम में परचेस अपने बिजनेस को शेप देता है. परचेस का रोल ही इम्पोर्टेंट है हर एक बिजनेस रन करने के लिए. सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, functions of purchasing management. Receive purchase requisition. Starting point of procurement activity. It is the statement of requirement of production, also called intent. Coming to the next point, review and evaluate requisition. The purchase department reviews the following: item discrimination, quantity, estimated purchase price or last purchase price, consumption pattern in the last 3 years, when the material is required, and provisions etc. सो फंक्शंस जो है परचेस डिपार्टमेंट के, वो हर एक फील्ड में ध्यान देता है. उनका मेन मोटो है बिजनेस एक्सपांड करना होता है. परचेस डिपार्टमेंट इन चीज़ों को रेक्टिफाई करता है, जैसे कि प्रोडक्ट डिस्क्रिमिनेशन, क्वांटिटी वाइज कैलकुलेशन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड ऑल्सो स्टॉकिंग ऑफ गुड्स एक्सेट्रा. सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट,
Thank you everyone. So now it's time for the live demo. I request to Aniket sir, proceed ahead for the live demo session. Thank you. Yes, thank you, Ankita. That was the nice presentation from your side. So, hello everyone. My name is Aniket, presenting from Rajlakshmi Solutions Private Limited. So, आज हम टैली में परचेस मैनेजमेंट प्रोसेस देखने वाले हैं. किस तरीके से हम अपना टैली में प्रॉपर परचेस एंट्री बुक कर सकते हैं. जो भी चीज़ें हम कभी बाय करते हैं तो उस ट्रांजेक्शन को हमें प्रॉपरली टैली में परचेस में मेंटेन कैसे करना है, हम परचेस ऑर्डर कैसे बुक कर सकते हैं, और उस बिल का हमारे का कौन सी रिपोर्ट में इफेक्ट होता है. तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं. सो फर्स्ट माई स्क्रीन विजिबल मैम. मैम मेरी स्क्रीन शो हो रही है? Yes sir. थैंक यू. सो सबसे पहले परचेज के लिए जैसे एक परचेज का अगर हम प्रॉपर प्रोसेस देखते हैं तो सबसे पहले हम परचेज ऑर्डर, जब भी हम कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं किसी पार्टी से, तो हम उस पार्टी को परचेज ऑर्डर रेज कर दें. जो ऑर्डर में हमें क्या परचेज करना है वो पार्टी को वहाँ पे बताया जाता है. तो ऑर्डर हमें आप सबसे पहले वाउचर बुक करना है. इससे पहले भी हमें कुछ मास्टर्स यहाँ पे पार्टी मास्टर क्रिएट करने, जो कि हमारा क्रेडिटर है, लेजर है. यहाँ पे अल्टर में मैंने यहाँ पे लेजर बनाया है. अनिकेत यहाँ पे एक लेजर है, डेमो लेजर है. ये हमारे क्रेडिटर है. इस पार्टी से हम परचेस करना चाहते हैं. एंड सेकंड यहाँ पे परचेस लेजर यहाँ पे क्रिएट होना जरूरी है. वो परचेस एंट्री के लिए हमें यहाँ पे लगने वाला है. तो हम वाउचर्स में यहाँ पे सबसे पहले आते हैं. यहाँ पे F9 का शॉर्टकट की दिया है परचेस के लिए, वहाँ पे हमें क्लिक करना है. सबसे पहले अगर हम जब ऑर्डर देते हैं परचेस ऑर्डर के लिए, हमें यहाँ पे F10 में जाना है, अदर वाउचर्स में. यहाँ पे हमें करना है शो इनएक्टिव. जब भी हमारा परचेस ऑर्डर वाउचर इनएक्टिव होता है, वो एक्टिवेट नहीं है, तो हमें यहाँ पे नहीं दिखेगा. शो इनएक्टिव में क्लिक करके हमें उसको एक्टिवेट कर लेना है. परचेस ऑर्डर यहाँ पे दिख जाएगा. एंड इसका शॉर्टकट की भी हमें सामने दिख जाता है, कंट्रोल F9. तो परचेस ऑर्डर हमें फिर ओपन कर लेते हैं. यहाँ पे हमें दिखेगा यू नीड टू एक्टिवेट परचेस ऑर्डर वाउचर टाइप, एक्टिवेट नाउ. हम इसको यस कर लेते हैं. तो ये हमारा परचेस ऑर्डर एक्टिवेट हो गया है. सब नेक्स्ट हमारा ऑर्डर नंबर यहाँ पे 1, जो भी ऑर्डर नंबर हम यहाँ पे देना चाहते हैं, ऑर्डर नंबर 1. हम सबसे पहले जिस पार्टी को परचेस ऑर्डर दे रहे हैं, यहाँ पे वो पार्टी सेलेक्ट कर लेते हैं. अनिकेत यहाँ पे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है. ऑर्डर डिटेल हम यहाँ पे डाल सकते हैं. मोर टर्म्स ऑफ पेमेंट, टर्म्स ऑफ डिलीवरी, ये डिटेल हम यहाँ पे डाल सकते हैं अगर हो यहाँ पे हमारे पास होंगी तो. नेक्स्ट यहाँ पे ऑर्डर नंबर 1. ये ऑर्डर नंबर को हम हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हमारे कंपनी के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, ताकि यही ऑर्डर नंबर हमारे प्रोसेस में आगे ट्रैक होने वाला है. नेक्स्ट यहाँ पे परचेस लेजर अब सेलेक्ट कर लेते हैं. एंड हम जो भी आइटम बाय करना चाहते हैं पार्टी से, जैसे अनिकेत यहाँ पे पार्टी लिया गया है, इनसे हमने आइटम 1 अगर बाय करना है तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं. जैसे हमें उनसे 50 क्वांटिटी बाय करनी है एंड इसका रेट 150 होना चाहिए है. एंड GST यहाँ पे ले लेते हैं. SGST एंड इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं. तो यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, इसका ऑर्डर नंबर 1 था, तो यही ऑर्डर नंबर हमें आगे जाके याद रखना है, उसको ट्रैक करने के लिए प्रॉपरली. एंड इसको अभी यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं. सो परचेस ऑर्डर बुक करने के बाद जब पार्टी उस ऑर्डर को रिसीव करती है, वो हमें उसके अगेंस्ट कुछ मटेरियल सेंड करती है. जैसे हमने 50 क्वांटिटी का उनको परचेस ऑर्डर दिया है, तो 50 क्वांटिटी में से वो ओवरऑल पूरे क्वांटिटी भी वो हमें रिटर्न में मतलब ये दे सकते हैं. एंड उसमें से कुछ क्वांटिटी भी लेस करके वो हमें दे सकते हैं. उसके हमें रिसिप्ट नोट यहाँ पे पास करनी है. सेकंड प्रोसेस हमारा रहेगा रिसिप्ट नोट का. तो यहाँ पे हम जाते हैं अदर वाउचर्स में. यहाँ पे रिसिप्ट नोट हमें कहीं नहीं दिख रहा है, तो हम शो इनएक्टिव पे क्लिक करेंगे.
एंड यहाँ पे रिसिप्ट नोट को इसको एक्टिवेट कर लेंगे। इसका भी यहाँ पे शॉर्टकट कीट है Alt F9, इसको एक्टिवेट नाउ यस कर लेंगे। अभी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें दिख जाएगा हमारे ऑर्डर नंबर, इस ऑर्डर के अगेंस्ट हमें रिसिप्ट नोट आ रहा है, मटेरियल आ रहा है, तो वो हम यहाँ पे ऑर्डर सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर हमारे इस पार्टी के मल्टीपल ऑर्डर्स है तो यहाँ पे मल्टीपल ऑर्डर्स भी हम यहाँ पे ट्रैक करके एक ही रिसिप्ट नोट में ले सकते हैं। परचेस ले लेते हैं। जैसे कि हमने परचेस में आइटम 1 लिया था, यहाँ पे आइटम 1 GST उसका ऑटोमेटिक आ गया है। एंड सेकंड थिंग, यहाँ पे जैसे हमने 50 क्वांटिटीज का ऑर्डर दिया था, लेकिन पार्टी ने फॉर एग्जांपल 40 क्वांटिटी ही सेंड की है, यहाँ पे 40 हम डाल लेते हैं। जो रिमेनिंग 10 है उसका हमें आउटस्टैंडिंग यहाँ पे दिखेगा, रिपोर्ट में आपको मैं दिखा देता हूँ आगे जाके। GST सेम, यहाँ पे GST उस पर 18% कैलकुलेट होकर आएगा। एंड फाइनली इसका रहेगा परचेज बिल। पार्टी हमें सेल बिल पार्टी से हमें रिसीव होता है, उसके अगेंस्ट हम यहाँ पे हमारी टैली में परचेज बिल बुक करेंगे। सो यहाँ पे इसकी डेट चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है रिसिप्ट नोट, यहाँ पे रिसिप्ट नोट भी 1 था हमारा एंड ऑर्डर नंबर भी 1 था। 1 सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑर्डर नंबर हमारा ऑटोमेटिकली आ जाता है। परचेस आइटम 1 यहाँ पे लिया था, 40 क्वांटिटीज यहाँ पे आ गई हमें। यहाँ पे हमें CGST SGST लेना है एंड इसको यहाँ पे सेव कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे हमें एक बिल रेफरेंस का ऑप्शन आता है, बिल वाइज डिटेल का, इसको न्यू रेफरेंस लेना है ताकि इसके अगेंस्ट जो भी हमें पेमेंट आता है, पेमेंट करना है, वो प्रॉपरली आउटस्टैंडिंग यहाँ पे हमें दिखेंगे। यहाँ पे दिख जाएगा हमें 7080 का आउटस्टैंडिंग पेएबल बैलेंस में दिखना चाहिए था, तो वो भी हम यहाँ पे आगे जाके रिपोर्ट में देखने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा परचेज बिल बुक का। अभी हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे हमने परचेस ऑर्डर बुक की है, परचेस ऑर्डर के अगेंस्ट हमने रिसिप्ट नोट बुक किया है। यहाँ पे मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ, डे बुक में जाते हैं। सबसे पहले देखिए परचेस ऑर्डर यहाँ पे बुक किया हमने क्वांटिटीज की, इसमें से 40 क्वांटिटी हमें रिसीव हुई है 1 मई को ही, एंड उसका बिल बना है 31 मई को, बिल उनसे रिसीव हुआ था। तो ये ओवरऑल प्रोसेस है परचेस का। अभी इसका इफेक्ट हम देखेंगे कहाँ पे इसका क्या इफेक्ट हमें जाता है। सबसे पहले तो 50 क्वांटिटीज हमने ऑर्डर दिया था, उसमें से 40 रिसीव हुआ है, तो 10 क्वांटिटी हमें यहाँ पे देखना है कहाँ पे वो आउटस्टैंडिंग हमें दिखता है। सबसे पहले यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में हम आते हैं, जैसे ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हम लेजर सेलेक्ट कर लेते हैं या फिर ऑल ऑर्डर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑल ऑर्डर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑर्डर नंबर 1, इसका आइटम 1 का 50 क्वांटिटी हमें रिसीव हुआ है, बैलेंस क्वांटिटी 10 है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देख सकते हैं ऑर्डर का। सेकंड, यहाँ पे लेजर वाइज अगर हम देखना चाहते हैं तो लेजर वाइज भी देख सकते हैं। जैसे पार्टी का पर्टिकुलर पार्टी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इस पार्टी का कितना क्वांटिटी है, कितना ऑर्डर था एंड कितना हमें रिसीव हुआ, कितना पेंडिंग है, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। सेकंड, हम आइटम वाइज भी देख सकते हैं, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, तो हम आइटम वाइज भी यहाँ पे रिपोर्ट देख सकते हैं। आइटम 1 यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं 10 क्वांटिटी यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे दिखा रहा है 10 क्वांटिटीज का। इसको जैसे हम एंटर करेंगे यहाँ पे हमें डिटेल में रिपोर्ट देखने को मिल जाएगा। 50 क्वांटिटीज का हमारा ऑर्डर था एंड 10 यहाँ पे पेंडिंग है। तो नेक्स्ट यहाँ पे है हमारा आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में हम आते हैं एंड स्टैटिस्टिक्स में आते हैं, सॉरी आउटस्टैंडिंग में आते हैं। यहाँ पे जैसे हम टेबल पे क्लिक करेंगे हम यहाँ पे देख सकते हैं इस पार्टी को हमारा पेमेंट देना बाकी है 7080 का, जो कि हमने उनसे परचेस किया था। यहाँ पे Alt F1 अगर हम क्लिक करेंगे परचेस बिल दिखेगा एंड जो आइटम हमने परचेस किया था वो आइटम हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो इस हिसाब से हमारा यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट दिखेगा।
जैसे हम इसके अगेंस्ट कोई भी रिसिप्ट एंट्री बुक करते हैं वो आउटस्टैंडिंग में से यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अगर हम लेजर वाइज रिपोर्ट यहाँ पे देखना चाहते हैं तो लेजर वाइज भी देख सकते हैं। लेजर में क्लिक करेंगे, यहाँ पे लेजर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लेजर वाइज बिल वाइज हमें यहाँ पे रिपोर्ट देखने को मिलता है। तो ये आउटस्टैंडिंग में यहाँ पे दिख रहा है। जैसे हम यहाँ पे कोई रिसिप्ट पेमेंट एंट्री बुक करते हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे पेमेंट एंट्री, उस पर्टिकुलर बिल के अगेंस्ट हम बैंक पेमेंट कर रहे हैं पार्टी को। यहाँ पे अगेंस्ट बिल सेलेक्ट कर लेना है एंड वो बिल हमें यहाँ पे दिख जाएगा 7080 का एंड इसको सेव कर देना है। अगर हम अभी यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में देखना चाहेंगे, आउटस्टैंडिंग यहाँ पे पेएबल में जाएंगे, यहाँ पे वो ब्लैंक निकल चुका है, वो भी हट चुका है यहाँ से आउटस्टैंडिंग से। सेम रिपोर्ट यहाँ पे हमें गोटू में भी देखने को मिल जाता है। हम डायरेक्टली यहाँ पे गोटू से भी आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट या फिर लेजर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट भी यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे परचेस ऑर्डर वाउचर या फिर परचेस ऑर्डर या आउटस्टैंडिंग यहाँ पे हम देख सकते हैं डायरेक्टली गोटू से। सो ये ओवरऑल परचेस का प्रोसेस यहाँ पे टैली में प्रैक्टिकली हम कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन। Thank you, Ankita and Aniket, for your presentation. So now it's a time for overview of the today's session. So it's over to you, Bhagwati sir. Yeah, thank you, Anga and team. So today session is for the purchase management in the Tally Prime. So myself is Bhagwati Dhandaria. So in terms of the today presentation Tally Prime Purchase Management, आप जैसा कि आप जान सकते हैं कि आज एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर आपने परचेज करते समय में अगर जरा सा भी मिस्टेक किया कि अगर आपने गलत ऑर्डर दे दिए या एक्स्ट्रा ऑर्डर दे दिया तो मे भी अगर आपकी प्रोडक्ट आपकी इन्वेंट्री एक्सपायरी होने वाली है तो यू विल लूज योर कैपिटल। अगर आपके प्रोडक्ट ओवर स्टॉक अगर हो गए तो डेफिनेटली आपका स्टॉक भी खराब हो सकता है और आपके वेयर हाउस के चार्जेस भी लगेंगे और कहीं ना कहीं कैपिटल डंप भी आपकी हो जाएगी। सो ऑर्डर परचेज मैनेजमेंट इज ऑलवेज वेरी सीरियस सब्जेक्ट टू in any of the businesses. So in terms of the Tally Prime, आज की डेट में you can analyze your stock first. You can analyze. Okay. So now in terms of the purchase management, इन सभी चीजों को, इन सभी पैरामीटर्स को हमने चेक करने के लिए टैली प्राइम हम कैसे कर सकते हैं, जो आपको आज की डेट में हमारे टीम के जो लोग हैं मिस्टर अंकिता ने आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया, जहां पर आपके पास जो भी सेल्स ऑर्डर आए हैं और आपके पास जो स्टॉक है और आपका मूवमेंट इस पर्टिकुलर डेज में, पर्टिकुलर महीने में कितना हो रहा है उस पर्टिकुलर स्टॉक का, यानी आपको मिनिमम ऑर्डर आपके पास क्या होना चाहिए, स्टॉक क्या होना चाहिए, उसके बेस पे आपको परचेज ऑर्डर कितना देना चाहिए, रीऑर्डर लेवल के बेस पे आपको ये सभी रिपोर्ट आपको टैली प्राइम में मिलती है। तो ये सभी एडजस्टमेंट करने के बाद में टैली प्राइम आपको ये बता देता है कि आपके पास कितना ऑर्डर आज की डेट में देना चाहिए आपको अपने वेंडर्स को, और in this scenario, according that you can plan the order, you can give the right partner, right vendor, they can give a best price. So best price कैसे एनालिसिस होगा, तो मूवमेंट एनालिसिस में आपको बेस्ट प्राइस भी एनालिसिस हो जाएगा। अगर आपने एक पर्टिकुलर आइटम 3 लोगों से लास्ट टाइम में परचेज किया है तो आपको ये पता लगेगा कि मिनिमम रेट किसका है। On that basis, you can make a right decision to give the order to the right vendors. Or whatever terms and conditions, the credit facilities, all these things you can manage in this. तो ये सभी चीजें आपके पास आज की डेट में टैली प्राइम में अवेलेबल है, जिसको आप बहुत ही अच्छे ढंग से यूटिलाइज कर पाएंगे। और इसको यूटिलाइज करने के लिए और इसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए अगर आपको इसमें कोई ट्रेनिंग चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट विद आवर अकाउंट मैनेजर जो आपके साथ राज्य लक्ष्मी से कनेक्टेड है। साथ साथ मेरा नंबर भी आपको आपके जूम चैट में अभी डाल के रखा है, यू कैन कॉन्टैक्ट विद मी फॉर द कंसल्टेंसी। और इसके अलावा हमारे सपोर्ट के नंबर से यू कैन कम्युनिकेट विद आवर सपोर्ट। सो इम्प्लीमेंटेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ दिस ऑल द प्रोसेसेस you can touch with us.
जैसा कि आप जानते हैं हमारा YouTube चैनल आपके हर एक फीचर्स के बारे में पूरा का पूरा वीडियोस विद द थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन के साथ डाला। तो यू कैन ऑल्सो एक्सेस आवर यूट्यूब चैनल, और ये सभी जितने भी वीडियोज आप देख पा रहे हैं, जितने भी वेबिनार और ट्रेनिंग सेशन हमारे होते हैं, यू कैन जस्ट रेफर दैट। तो यू कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम आवर यूट्यूब चैनल। तो यू कैन सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, दैट लिंक इज ऑल्सो पॉपुलेटेड इन इस जूम चैट, जहाँ पर अभी आपको जूम चैट में लिंक है, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट, यू कैन सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, यू कैन गेट द बेनिफिट्स। सो इस तरीके से आप अपने टैली प्राइम को काफी अच्छे ढंग से स्मूथली यूज कर सकते हैं और आप अपने बिजनेस को बहुत स्मूथ वे में लेके जा सकते हैं, जहाँ पर आपका कैश फ्लो, बैंक प्रोसेस एंड ऑल द थिंग्स यू कैन मैनेज इन द प्रॉपर मैनर। जैसा कि आप जानते हैं कि राजलक्ष्मी सॉल्यूशन एवरी मंथ कुछ आपके लिए स्पेशल करती है। तो इस मंथ हमने डेटा सिक्योरिटी के ऊपर काफी कॉल्स हमारे पास आते थे, डेटा डैमेज हो गया, डेटा करप्ट हो गया, डेटा मिसिंग हो गया। तो इन सभी चीजों को लेकर के अभी हमने हमारा एक ऑटो बैकअप मॉडल है जिसको हमने लॉन्च किया, जिस पर काफी अच्छी हमने अट्रैक्टिव प्राइस आपके साथ हमने डिसाइड किया है। तो many of the customer are getting the advantage. So you can touch with us and you can get the advantage in the auto backup, and you can do the business hassle free without any tension। आप अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं, आपका बैकअप, आपके सिस्टम का बैकअप ऑटोमेटिक होता रहेगा, और कभी भी कोई भी challenges आने पे you can just restore, click on that and restore the backup, and you can utilize the business with whatever you already done in the last few minutes, hours, and whatever setting you already done। तो ये सभी चीजें आपके साथ एडवांटेज हैं राजलक्ष्मी के साथ काम करने में। और इसके अलावा आपके पास बड़े प्रोसेसेस हैं, तो यू कैन गो इन द SAP ERP, या अगर आपके पास लीड का चैलेंजेस है, कम्युनिकेशंस के चैलेंजेस है, एम्प्लॉय एफिशिएंसी का चैलेंजेस है, कस्टमर प्रोफाइलिंग का चैलेंजेस है, तो यू कैन टच विद अस इन टर्म्स ऑफ द CRM, प्रोसेस मैनेजमेंट, वर्कफ्लो मैनेजमेंट, टास्क प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंट रखने के चैलेंज है, तो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। यू कैन टच विद अस एंड यू कैन गेट द एडवांटेज ऑफ द राजलक्ष्मी, एंड यू कैन use our expertise in your business and grow with your business. So that's it from my side today. It's up to you, Anga. Thank you. Thank you so much, sir. So soon this session will be uploaded in the YouTube channel. So be connected to our social media to get the latest updates. Thank you, everyone. So now we'll wind up the session. Thank you.